Namaskar, my all dear aspirants for CUET 2022. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of syllabus for the subject English. Idiom and phrases series going on. 3 videos I have covered, and here we are covering important idioms alphabetically. Alphabet O तक हमने complete कर लिया था. Now rest of all the idioms till last we will cover in this video. आज इसमें cover करूँगी मैं. तो अभी हम start करते हैं alphabet P से. The first one हमने last छोड़ा था 175. Yes, I was right. So here we are starting from 176. Pass the buck. Avoid responsibility to giving it to someone else. Means passing buck to one another. एक दूसरे को देना मतलब responsibility. Nobody is ready to take the responsibility. 177. Pedal to the metal. Go to full speed, especially while driving a vehicle. So pedal to the metal मतलब full speed में जाना. तो इससे connect कर सकते हो. ये भी speed से related है, logical है. Next is 178. Pick up your ears to listen very carefully. एक था lend your ears, एक है pick up the ears. दोनों का मीनिंग सेम है. लिसनिंग वेरी केयरफुली. 179. पिग इन अ पोक. A deal that is made without first examining it. ठीक है, इस तरह के जो idioms है ना, जो बिल्कुल सेंसलेस हैं, मतलब उनका वर्ड का जो फ्रेज है वही मैच नहीं करता कि ये क्या लिखा है. पिग इन अ पोक, इस तरह के idioms ज़्यादा पॉसिबल होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए, जिनके लॉजिकल या सेम मीनिंग होते हैं, थोड़े ऑब्वियस मीनिंग होते हैं. प्लीज़ पे लेस importance on that and try to learn by giving the mnemonics और ट्रिक्स. कुछ भी आइडिया लगा के इस तरह के idioms लर्न करने की कोशिश करो. Pig in a poke is called a deal that is made without first examining it. कोई डील आपने कर ली है, उसको देखा नहीं, परखा नहीं, तो this is called pig in a poke. नेक्स्ट चलते हैं 180 पर चलते हैं. That is pig out. ये भी pig से रिलेटेड है. To eat a lot and eat it quickly. बहुत ज़्यादा खाना. पिग कैसा होता है? वेरी हेल्दी, वेरी स्टाउटी, फैटी होता है ना पिग, मतलब बहुत ज़्यादा खाना और बहुत जल्दी जल्दी खाना. 181 देखते हैं. पाइप डाउन, टू शट अप एंड टू बी क्वाइट. पाइप डाउन मतलब जो तुम्हारा पाइप है जिससे तुम बोल रहे हो उसको बंद करो, मुंह बंद करो. ठीक है, लॉजिकल है. 182 इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. बाय कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिसिंग यू विल बिकम बेटर. प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है. वट एवर यू आर डूइंग वो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. जितना भी आप कर रहे हो, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट नीड्स द इक्वल अटेंशन एंड इक्वल प्रैक्टिस. ओके, डोंट लीव दैट. नेक्स्ट इज 183 इज pull the plug. To stop something, to bring something to an end. Obviously if you pull the plug out, किसी भी चीज़ का plug निकालते हैं मतलब क्या हुआ? That is stopped. That thing is stopped. किसी चीज़ को रोक देना. Next is pulling your ears, tricking someone as a joke. Pulling your ears, कान खींचना, tricking someone as a joke. ठीक है. नेक्स्ट इज अभी कान तो एंगर में खींचे जाते हैं, यहाँ पे मीनिंग इसका बिल्कुल उल्टा है. tricking someone as a joke. नेक्स्ट इज pull a sock in it, to tell noisy person or a group to be quiet. Put a sock in it. sock मतलब आप ये मान लो किसी में जैसे बोले जा रहा है तो कुछ इन्फ्यूज़ कर देना, ठूस देना. sock in it is called. कोई ग्रुप है, कोई पर्सन है, noisy है, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको बंद करने के लिए, दैट इज पुट अ सॉक इन इट. 186 देखते हैं. दैट इज क्यू से हमारा एक है इंपॉर्टेंट, वो है क्यूर द पिच. क्यूर द पिच इज कॉल्ड डिस्ट्रॉय और ruin अ प्लान. ठीक है, क्यूर अ पिच इज कॉल्ड टू डिस्ट्रॉय अ प्लान. only one, so it is easy to remember. 187 देखते हैं. rain check, an offer or deal that is declined right now but willing to accept later. rain check मतलब कोई डील है जिसको अभी मना कर दिया है बट बाद में willing to accept that, लगता है कि हाँ ये हमारी दोबारा से कंसीडर कर सकते हैं, कर ली जाएगी, तो this is called rain check. Next is 188. Raining cats and dogs, a very loud and noisy rainstorm. Very we can say na interesting or favorite idiom that is put so many times in the competitive exam. Raining cats and dogs, a very loud and noisy rainstorm. बहुत ज़्यादा शोर होता है, वहाँ के लिए भी यूज़ किया जाता है. 189. Ring fences. Separated usual judgment to guarantee protection, especially project fund. So ring fencing. fencing से क्या करते हैं हम? गार्ड करते हैं. जो हम fencing मतलब सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं fencing, तो उसी से रिलेटेड है. जो प्रोजेक्ट फंड हैं उनके लिए क्या है? जो प्रोजेक्ट जितने भी फंड हैं उनके लिए गारंटीड प्रोटेक्शन है जो कि दिया गया है किसी जजमेंट में, तो इसको हम बोलेंगे किस उससे बोलेंगे रिंग फेंसी. किससे बोलेंगे हम? रिंग फेंसी से हम बोलेंगे. It is not.
Okay. Now it is 189 we have completed. Now 190 we have reached. Rise and shine. Time to get out of the bed and get ready for work or school. Rise and shine. The sun is rises. The sun has risen already and it is shining. Just come out from the bed and get ready for the day. 191. Rome was not built in one day. If you want something to be completely properly, then it's going to take time. यानी कि एक दिन में आप कोई शहर नहीं बना सकते हो, ठीक है. रोज थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करना ज़रूरी है when you want to be it completed. Now 192 is rule of thumb. A rough estimate. Rule of thumb is called a rough estimate. किसी के बारे में rough idea देना, कोई we can say ना the assumption देना, कोई rough assumption देना, तो इसका मतलब है rule of thumb. It is important, याद करना. 193. Run out of the steam. To be completely out of energy. So run out of steam. Steam में क्या होती है? Steam में energy होती है. So run out of steam मतलब completely out of energy. Energy खत्म हो गई है. That is called run out of steam. हमारा S स्टार्ट हो गया है. 194. Saved by the bell. Saved at the last possible moment. Saved by the bell. Bell का मतलब क्या होता है? Last moment. तो यहाँ पे यही बताया गया है saved at the last possible moment, यानी saved by the bell. Bell से याद रखना last moment, ठीक है. Next देखना 195. That is scapegoat. Now scapegoat someone else who takes the blame. Scapegoat मतलब किसी और ने ले लिया. ज़्यादातर ये कौन करते हैं? Well wishers or your parents elder can do. So they can be the scapegoat for you in the time of trouble. 196 scot free to escape and not have to pay. ठीक है. Scot free मतलब आपने खाया पिया escape करके भाग गए बिना पे किए हुए. That is called scot free. 197 is called sick as a dog. To be very sick with a flu or a cold. Sick as a dog बहुत ज़्यादा बीमार होना. 198 is called sitting shotgun. Riding in front of the passenger seat of a car. Sitting shotgun. Riding in front of the passenger seat of a car. Means आप कहाँ पे riding कर रहे हो? You are riding in front passenger seat of the car. Front passenger seat जहाँ से आप ride करते हो, that is called sitting shotgun. 198. अब हम चलते हैं आगे 199 पे. That is sixth sense. A paranormal sense that allows you to communicate with the dead. Sixth sense बोलते हैं ना, ज़्यादातर sixth sense is very active, okay, and remain and can be assumed in dogs. During the wee hours, means सुबह के early 3 बजे 4 बजे ऐसा. I'm not afraiding you, I'm just making the sense clear that sixth sense is called related to paranormal sense. देखो paranormal की study होती है, it exists. We cannot deny, okay? We cannot deny to communicate with dead if it is a study. It is a part of the medical science, so we cannot deny with this. So this idiom is based on that. हमारी सिर्फ 5 senses होती हैं. Sixth sense कौन सी होती है? जो आपको communicate करती है, that enables you to communicate with that. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं हम 200. Skid Row, the run-down area of a city where the homeless and drug users live. Skid Row, कौन सी row, कौन सी line? The run-down area of a city. Run-down area means we can say ना that is neglected as very backward area, low area. जहाँ पे कौन रहते हैं? Homeless और drug users live रहते हैं वहाँ पे. 201 is smell a rat. To detect someone in the group, it's betraying the others. Smell a rat. ऐसा करना कि ग्रुप में अगर 5 लोग हैं तो someone one of those members ना is doing something, is ditching you, deceiving you, or betraying you. कुछ धोखा दे रहा है वो आपको. 202 smell something fishy, detecting that someone isn't right and there might be a reason for it. कुछ पक रहा है, कुछ खिचड़ी पक रही है. स्मेल समथिंग फिशी मतलब कुछ है जो ठीक नहीं है और उसके पीछे कुछ रीज़न है, वो पता लगाना है. दैट इज 202. सन ऑफ गन. आगे चलते हैं 203. सन ऑफ गन इज कॉल्ड अ स्कैम. नेक्स्ट इज साउथ पॉ. ये जो वन वर्ड के हैं. अच्छा, मैंने आपको ईडियम बताए थे कि फ्रेजेस होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे हमारे ईडियम हो जो फ्रेजेस में हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो. सिंगल वर्ड्स भी हो सकता है. सो मैनी सिंगल वर्ड्स हैज कम लाइक डूजी,
मतलब 90% वी कैन से दैट यस ईडियम्स आर इन द ग्रुप, बट सिंगल वर्ड ईडियम्स भी होते हैं. तो यहाँ पे है लाइक साउथ पॉ, सन ऑफ गन, राइमिंग वर्ड है. स्कैम्प आप बोल सकते हो विकेड पर्सन, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो विकेड पर्सन. विकेड पर्सन या बहुत शैतान, मिसचीवियस, कभी कभी बच्चों के लिए भी यूज़ किया. यू आर स्कैम्प मीन सन ऑफ गन. साउथ पॉ, समवन हु इज लेफ्ट हैंडेड. जो लेफ्टी होते हैं उनको साउथ पॉ बोला जाता है. तो आप ऐसे याद रख लेना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ऊपर वाले राइट हैंडी, नीचे वाले लेफ्ट हैंडी, ऐसे याद हो जाएगा. 205 देन स्पिटिंग इमेज, द एग्जैक्ट लाइकनेस और काइंड. स्पिटिंग इमेज मतलब एग्जैक्ट लाइकनेस और काइंड, मतलब एग्जैक्टली द काइंड ऑफ, तो उसके लिए बोलेंगे स्पिटिंग इमेज. 206 देखते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, टू डू इट ऑल ओवर अगैन फ्रॉम द बिगनिंग. स्टार्ट फ्रॉम द स्केच, आपने पूरा बना लिया, अगैन इट इज रफ, लुकिंग रफ, अपने उसको रफ करके देन अगैन यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है. 100 to 107 स्टार्ट हो गया है हमारा टी. द बॉल इज इन योर कोट. द बॉल इज इन योर कोट. कोट नहीं है, ये कोर्ट है. बॉल इज इन योर कोट, इट इज योर डिसीजन दिस टाइम, ये आपका डिसीजन है. बॉल इन योर कोट होता तो भी थोड़ा सा सेंस था, अब कोर्ट आ गया, बट करना तो पड़ेगा. कोर्ट का मतलब क्या हुआ, योर डिसीजन दिस टाइम, ये आपका डिसीजन है. 208 द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स. देयर आर टू चॉइसेस एंड यू हैव देम बोथ. आपके पास दो चॉइसेस हैं. द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, यू कैन हैव एनी वन, you can have either. Here 209, the bigger they are, the harder they fall. While the bigger and stronger opponent might be a lot more difficult to beat, when you do, they suffer a much bigger loss. जितने ज़्यादा बड़े और stronger opponent होते हैं उतनी बड़ी difficulty होती है, उतनी ही बड़ी उनकी क्या होती है, हार या loss होता है. So the bigger they are, the harder they fall. जितने ज़्यादा बड़े होंगे उतनी बड़ी defeat मिलेगी. 210 the last straw. When one small burden after another creates an unbearable situation, the last straw is the last small burden that one can take. So last straw का मतलब क्या हुआ, एक बर्डन, उसके बाद दूसरा बर्डन जो बहुत सारी अनबियरेबल सिचुएशन क्रिएट कर देता है. द लास्ट स्ट्रॉ इज द स्मॉल बर्डन दैट वन कैन टेक. तो एक के बाद अब बहुत सारे बर्डन आ रहे हैं, फिर एक और आ जाओ, नो प्रॉब्लम. ठीक है, होता है ना, व्हेन वी आर, एक्चुअली हैप्पीनेस पे नहीं होता है. व्हेन यू आर मोर हैप्पी यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, बट बर्डन और सिचुएशन, द बैड थिंग कम्स का जब बैड फेज आता है, तो एक आया हो, फिर दूसरा आया, ये भी मेरे साथ ही क्यों होना है, बट इट्स ओके ना, इट्स अ पार्ट, इट्स अ एग्जामिनेशन ऑफ योर पेशेंस. तो यहाँ पे यही है कि एक के बाद दूसरी बैड सिचुएशन आ रही है, अगर एक और आ जाती है तो दैट इज रिगार्डेड एज द लास्ट स्ट्रॉ. राइट. नेक्स्ट इज 211 द होल नाइट यार्ड्स, एवरीथिंग ऑल ऑफ इट. Whole night yard, it's called everything all of it. Whole night yards का मतलब खुला जगह जो होता है, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड जो होता है, तो आप बोल सकते हो everything all of it. सभी चीज़ को कंबाइन करना. 211. आगे चलते हैं 211 के. 212 is third times a charm. Third, 212. Third times a charm, after no success the first two times, the third try is lucky one. Third times charms the person or the competitors who are giving exam again and again, but anyhow after the failure getting two times, third time their luck is in their hand. So इसको बोलेंगे third times a charm. 213 tie the knot to get married. Knot, ठीक है, नॉट बांधी जाती है ना जब शादी होती है, तो tie a knot means to get married. Yes, I am running. Okay. 214 till the cows come home. A long time. Cows come home मतलब काऊ बाहर गई है, जब तक वापस आई तो क्या हुआ, बहुत बड़ा समय हो गया. Till the cow comes, I was here. To make a long story short, something someone would say during a long and boring story in order to keep his or her audience from losing attention. Usually the story isn't shortened. So to make a long story short का मतलब क्या हुआ कि something or someone is saying during a long and boring story to keep it the audience losing attention. बहुत लंबी स्टोरी सुनोगे, बहुत जब elaborate कर देते तो बोर होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है, the usually the story isn't shortened, वो छोटी नहीं है. But to make a long story short means आप क्या कर रहे हो, you are elaborating in a kind of manner to keep the interest of the story in that story of the audience. ठीक है. 216 आगे देखते हैं.
टू स्टील समवन्स थंडर, टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड। स्टील का मतलब चुराना, चुराने का मतलब किसी ने और ने क्रेडिट ले लिया किस चीज का, समवन्स थंडर। थंडर से मतलब सोचो कि आप किसी ने अच्छा काम किया और क्रेडिट आपको चला गया, दैट इज कॉल्ड टू स्टील समवन्स थंडर। 217 टंग एंड चीक, ह्यूमर नॉट टू बी टेकन सीरियस। ह्यूमर इज कॉल्ड फनी थिंग। ह्यूमर का मतलब क्या होता है, फनी या कभी कभी आयरॉनिकली चीज हो जाता है, दैट शुड नॉट बी टेकन सीरियस, सीरियसली नहीं लेना है उसको। मीन्स द थिंग्स, द प्रोमिसेस दैट यू हैव डन इन टंग एंड चीक, आपने ह्यूमर वे में कर दिए तो उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए। 218 टर्न अ ब्लाइंड आई, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज समथिंग यू नो इज रियल और लेजिटिमेट। लेजिटिमेट को छोटा शॉर्ट लिख दिया है। सो टर्न अ ब्लाइंड आई मतलब आप यू आर रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज समथिंग, सो नो टू नो इट्स रियल। एक्नॉलेज इज कॉल्ड एक्सेप्ट, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को मना कर रहे हो, वो रियल है लेकिन आप मना कर रहे हो, क्यों? तो इसके लिए आएगा टर्न अ ब्लाइंड आई, मीन्स यू आर एबल टू सी दैट, सी द रियलिटी बट यू आर नॉट लुकिंग एट, यू आर टर्निंग एज इफ यू आर ब्लाइंड। तो आप क्या कर रहे हो, मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। 23 स्किडू, 23 स्किडू टू बी टर्न अवे, यहाँ पे लिख देती हूँ तो आपको याद रहेगा। 23 एक आया था 86, याद है 86 थ्रो अवे, मुझे तो याद हो गया। 23 स्किडू इज कॉल्ड टू बी टर्न्ड अवे। 23 ऐसे याद कर लो कि पेज नंबर 23 याद रखना है बस हम लोगों को, अगर ये आ जाए तो पेज नंबर 23 के बाद क्या करना है, टर्न अवे आगे करना है, तो ऐसे याद हो जाएगा। अब हमारा यू आ गया है 220 पे, अंडर द वेदर, फीलिंग इल और सिक। अंडर द वेदर मतलब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग वेल। 221 अप अ ब्लाइंड एली, एली का मतलब छोटी सी गली हो सकता है, ठीक है, तो अप अ ब्लाइंड एली, गोइंग डाउन अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट लीड्स टू अ बैड आउटकम्स। अप अ ब्लाइंड एली, एली गली वैसे ही छोटी होती है, ब्लाइंड का मतलब और छोटी, इसका मतलब क्या हुआ, यू आर गोइंग इन अ बैड आउटकम, आप लीड हो रहे हो कहाँ पे, जो आप काम कर रहे हो वो आपको कहाँ ले जा रहा है, बैड आउटकम की तरफ। यानी आप छोटी सी पतली सी गली में जाओगे तो क्या होगा, यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट वी कैन से ना, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड अ वेरी स्पेशियस प्लेस, आपको कुछ तंग कुछ वैसा मिलेगा। तो सेम इसमें यही लिखा है कि अगर आप किसी कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको आगे लीड कर रहा है, जिसका बैड आउटकम हो सकता है, वहां हम यूज करेंगे अप अ ब्लाइंड एली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 222, यूज योर लोफ, यूज योर हैड, थिंक स्मार्ट। लोफ ब्रेड के लिए आता है जो बड़ी लॉन्ग लोफ होती है, तो यहाँ पे आया है यूज योर लोफ, यानी कि यूज योर हेड, अपनी अकल का यूज करो। 223 वैन गॉक्स ईयर फॉर म्यूजिक, यानी कि टर्न डेफ। वैन गॉक्स ईयर फॉर म्यूजिक यानी कि टर्न डेफ। बिल्कुल टर्न डेफ मतलब सुनाई नहीं देना, ऐसा लग रहा है कि टोन डेफ हो गई है, सुनाई नहीं दे रही है, सो इसका मतलब है वैन गोस ईयर ऑफ म्यूजिक। तो ईयर ऑफ, ईयर से याद रख लो, ईयर डेफ ईयर से रिलेटेड है, टोन म्यूजिक से रिलेटेड, ऐसे याद हो जाएगा। वी से हमारा स्टार्ट है। 224 वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, द मोर एक्सपीरियंसेस यू ट्राई द मोर एक्साइटिंग लाइफ कैन बी। ऑब्वियसली वैरायटी, जितनी आपको वैरायटी मिलेंगी उतने ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे लाइफ के। आगे चलते हैं अल्फ़ाबेट W पे 225 wag the dog, the diversion away from something of greater importance, diversion away from something of greater importance, wag the dog। wag का मतलब होता है मूव, जब डॉगीज अपनी टेल को हिलाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड, उसके लिए यूज होता है वैगिंग ऑफ द टेल बाय द डॉगी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी अटेंशन को डाइवर्स किया जा रहा है सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस समथिंग गुड और समथिंग बेटर, राइट। नाउ 226 देखते हैं हम, वाटर अंडर द ब्रिज, anything from the past that isn't significant or important anymore। so water under the bridge का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी कोई importance नहीं है जो past से हैं। water under the bridge मतलब past की कोई चीजें जो ज़्यादा important नहीं है। 227 wear your heart on your sleeve, wear your heart on your sleeve, कोई सेंस निकल रहा है इसका, बिल्कुल सेंसलेस है। इसका मीनिंग क्या है, टू ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस योर इमोशन, मीन्स wear your heart on your sleeve, अपना हार्ट हमने स्लीव पे रख दिया, हाथ पे रख दिया, यानी क्या किया, वी आर एक्सप्रेसिंग द इमोशन, सो एक्सप्रेसिंग फ्रीली, एकदम ओपनली, हार्ट बाहर रख दिया, इससे ओपन ज़्यादा क्या करेंगे। तो ये मीनिंग है थोड़ा सा, मीन्स इमोशन बहुत अच्छी तरह से, पूरी तरह से बताना।
When it rains, it pours. Since it rarely rains, when it does, it will be a huge storm. When it rains, it pours. या तो बारिश नहीं होगी, अगर होगी तो बहुत तेज तूफान आएगा. 228 we have completed. Now we are moving to 229. When pigs fly, ओहो लो, pigs fly. अभी बोला था pigs मीन्स पिग्स थे ना, पिग्स बॉडी में ईटिंग वेरी मच एंड क्विकली. देखो याद हुआ ना, ऐसे ही आपको भी याद हो जाएगा. अब यहाँ पे पिग्स फ्लाई, समथिंग दैट विल नेवर एवर हैपन. होगा ही नहीं भाई, पिग्स कैसे फ्लाई कर सकते हैं, ये ठीक है, ये इसका मीनिंग लॉजिकल है, पिग्स कैन नॉट फ्लाई एवर. अच्छा ये है ना, ज़्यादातर ईडियम का जो बोल सकते हैं ना, फेवरेट एनिमल कौन है, पिग. पिग्स पे बहुत सारे ईडियम्स होते हैं, है ना. अब देखते हैं 230. वाइल्ड एंड वूली, अनकल्चर्ड एंड विदाउट लॉज. वाइल्ड मतलब ऐसे जंगली होता है, वूली का मतलब और मान लो अनकल्चर्ड और विदाउट लॉज, जो लॉज को नहीं माने, वूली. नेक्स्ट इज 231. Wine and dine. When somebody is treated to an expensive meal. Yes, wine and dine. Dine का मतलब खाना, food. Wine आप लोगों को पता है क्या होता है, मतलब क्या हुआ जब food with wine हो, expensive हो गया ना ये meal, तो expensive meal. Somebody is treated to as expensive meal. यहाँ पे क्या है, when somebody is treated to an expensive meal, that is called wine and dine. Without a doubt, for certain. Without a doubt का तो ये obvious सा meaning है, without any doubt मतलब ये बिल्कुल भी certain है. हमारा आता है 233. X start हो गया है. X marks the spot. A phrase that is said when someone finds something he or she has been looking for. X marks the spot मतलब जो आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिल गया, ठीक है. X marks the spot. Spot जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिल गया. Whatever you are finding, you got that. 234. Y से start हो गया है हमारा. You are what you eat. In order to stay healthy, you must eat healthy foods. Obviously, जो आप खाओगे वैसा हो जाओगे. तो अगर आपको healthy रहना है तो आपको healthy food खाना रखोगा. 235. You can't judge a book by its cover. This has been used in one of the ad of Rin. वो द गर्ल आती है ना कि भाई डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर. सो डिसीजन शुड नॉट बी मेक प्राइमरली ऑन अपीयरेंस. अपीयरेंस को देखकर आप डिसीजन नहीं लो, अंदर कुछ भी हो सकता है. अ ब्लास्ट कैन बी देयर इनसाइड. 236. आगे आ गए हैं हम लोग 236 पे. यू कांट टेक इट विद यू. एंजॉय व्हाट यू हैव एंड नॉट व्हाट यू डोंट हैव. सिंस व्हेन यू डाई यू कैन नॉट टेक थिंग्स सच एज मनी विद यू. जो आपके पास है उसको एंजॉय करो ना, जो नहीं है वो मत करो, क्योंकि जब आप जाओगे यू आर गोइंग टेकिंग विद यू नथिंग. जो आपके पास है वो भी नहीं जाएगा, जो नहीं है वो तो जाएगा ही नहीं. सो व्हाट इज द मीन, यू कांट टेक इट विद यू. आप जब जाओगे अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जा सकते. लॉजिकल मीनिंग है. 237 देखते हैं. योर गैस इज अ गुड एज माइन. योर गैस इज एज गुड एज माइन. आई हैव नो आइडिया मतलब योर गैस, तुम भी गैस कर रहे हो, मैं भी गैस कर रहा हूँ, ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है. लास्ट देखते हैं हमारा 238. जीरो टॉलरेंस. दैट से स्टार्ट है. नो क्राइम और लॉ ब्रेकिंग. जीरो टॉलरेंस मीन्स इफ यू आर ब्रेकिंग any rule, if you are not prohibited with the things that are illegal, then you will be punished. और no crime और law breaking. zero tolerance होगा, no crime और law breaking होगा, ठीक है. तो ये हमारे कुछ idioms थे, important idioms. I have tried to include near about मतलब इतने भी अगर आप लोग पढ़ लोगे तो दैट विल बी सफिशियंट. बट इन दिस 4 वीडियो इफ यू वांट टू डू द मोर प्रैक्टिस, जस्ट फाइंड आउट मोर इडियम एंड यू कैन गो थ्रू दैट. एक आइडिया हो गया कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे आ सकते हैं. ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस एक्सरसाइज आई विल ट्राई टू ब्रिंग यू फॉर इडियम्स इफ यू वांट, ठीक है, वो भी ले आऊँगी. बट पहले जस्ट be ready with your practice and then face the practice questions. Okay, so that's it for this video. Now I will bring a new concept or new topic for the rest of the part from your CUET examination. Okay, thank you.